Hey, hello everyone. Welcome to Chemicals. So today we will going to discuss how to write a SOP. ओके, तो देखो इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर बातें मैं इंग्लिश में ही करूँ और यहाँ पे मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक जनरल स्ट्रक्चर विथ मतलब उस स्ट्रक्चर में जो जो पॉइंट होगा उसका थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देके और ये जो स्टेटमेंट पर्पस की बात मैं करूँगा वो नॉर्मली एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ज़्यादा रहेगा, पर एक जनरल मतलब कोई भी एसओपी का भी स्ट्रक्चर नॉर्मली यही होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, पर ये ऐसा कोई मतलब नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, आप अपना भी खुद का कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो लास्ट देन लाइक इन द लास्ट क्लास, इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट SRFP, है ना, समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। तो वहाँ पे ही एक समथिंग अराउंड आई थिंक 500 वर्ड और 300 वर्ड आई फॉरगॉट इस ऐसे वर्ड का एक एसओपी लिखने के लिए बोला था, है ना। सो दे हैव मेंशन टू लाइक सबमिट एन एसओपी अबाउट 500 वर्ड। देन वी टोल्ड देयर कि इफ यू guys required this then just let us know in the comment section and then we will make it. So that's why we are making it, but we will not talk only about like how to write an SOP for SRFP or a summer program, but like we will try to give overall like general picture for SOP. So before going to that, like I'm just talk about some basic points of SOP. ठीक है, तो SOP देन SOP की कुछ बात करने से पहले, सो व्हेन यू विल लाइक नीड दैट SOP, mainly in case of if you are trying for any university abroad, है ना, mainly in UK, USA, then they specifically ask for an SOP. Or like if you are applying for a specific scholarships, like outside India and even in India, like in PMRA for in outside India some Marie Curie or otherwise, like in all the scholarships they basically generally ask for an SOP. So yeah, these are the two main part where you need SOP. So for like applying in university abroad and for scholarship, and then now the last thing we already talked, that is SRFP or any summer program, then people may ask you for an SOP, like in this case SRFP they have asked it. So SOP का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे आपको लिखना चाहिए, ठीक है, कि एक लेटर की तरह, एक किस की तरह, मतलब व्हाट इट विल बी लाइक। तो ये बेसिकली एक पैराग्राफ राइटिंग टाइप होगा, और आप बोल सकते हो ना, बेटर टू से एसे essay writing type, ठीक है। So you had to like the format of writing is like basically paragraph or essay. And standard size, this is also a very like frequently asked questions among students. What is the standard size of SOP? तो अगर कहीं पे मेंशन नहीं कर दिया, like wherever you need it, there if there's mentioned like 300 word, 500 word, 3000 word, then it is completely okay, we don't need to think about that. But otherwise the standard size of SOP is mainly from 2 to 3 पेज, ठीक है। नॉर्मली 2 पेज में ही रखना अच्छा रहता है, यू कैन गो अप टू 3 पेज बट नॉट बियॉन्ड दैट। तो 2 to 3 पेज का ही एक स्टैंडर्ड साइज होता है एसओपी का, accordingly the words limit. And then this is a questions like I would like to ask you, that is, will there be any possibility that you can add some special photos or any color, what should be the case? तो इसके लिए ये बोलना चाहता हूँ मैं कि मतलब एसओपी की टाइम पे यू कांट ऐड एनी इमेज, एनी स्पेशल थिंग, लाइक you can't add, even you can't like change your color. Normally the like ऐसे ही लोग करते हैं कि कभी कलर सेम ब्लैक में रखते हैं, कभी भी इवन दे डोंट ट्राई फॉर some gray or whitish color. You just had to write it in a black color, preferably Times New Roman format, preferably. You can go for another things also,
बट प्रेफरेबली टाइम्स न्यू रोमन लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं। और ब्लैक में कोई भी फोटोज, कोई भी कुछ फ्लो चार्ट यू डोंट नीड टू ऐड, मतलब आप ऐड मत ही करो, और कलर चेंज तो बिल्कुल मत करो। तो यू जस्ट राइट इट इन लाइक गिव द टाइटल अ ब्लॉक, लाइक बोल्ड कर दो टाइटल को, टाइटल बस बोल्ड करके अंडरलाइन करके डायरेक्टली लिखना चालू करो। टाइम्स न्यू रोमन पे नॉर्मली फॉन्ट 11 to 12 ही रखते हैं लोग, ठीक है। अब चलो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसओपी। एसओपी एक लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करना पड़ता है, तो वो देखने थे। बेसिक स्ट्रक्चर एसओपी नॉर्मली ये 6 पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब ऐसे ये पैराग्राफ की तरह एक पहले आप इंट्रोडक्शन लिख के मतलब इंट्रोडक्शन ऐसे एक पॉइंट करके नहीं लिखना पड़ता है, तो मतलब टोटली एक ऐसे लिख के चलना पड़ता है। लेकिन मतलब ये जो स्ट्रक्चर, इनविजिबल स्ट्रक्चर जैसे फॉलो करते हैं वो है ऐसे एक आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। मैं बाद में एक एक चीज़ अलग अलग से डिस्कस करूँगा, but just let me give the idea what is the basic structure. So at first there will be, like in every case you had to have a introduction, then the background means your academic background, your like the journey from a school student to a college, and then the journey you need to mention if there is any exposure, any experience, anything. Then the most important part, most important part, people will look for the like in your SOP, that is the reason of opting, that this or that in university, this or that scholarship, this or that, for which you are basically writing this SOP, the reason of that, okay. Why you have chose that, why you have thought of choosing, and then how you are planning. Okay. If you get this, then how you are planning to execute your plan. These two things, that is the most important. And the next point I have written, that is career goals. तो इसका मतलब क्या है कि if you got this, like got this why and how, then how to like move forward with your career. Like if you are like applying for summer research, then what you will do with this summer research experience, then obviously it will be like a PhD. So that is what so the career goals, these these 2 points are basically interrelated. And then you have to like write like 2 to 3 lines, okay, about the specific program you are applying, the specific university you are applying, the specific scholarship. तो जिसके लिए भी आप लिख रहे हो उसके बारे में एक दो, तो मतलब 2 से 3 लाइन आपको लिखना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आप JSPS फेलोशिप, मतलब ये तो PhD के बाद के लिए होता है, मैं बस एक एग्जांपल दें, JSPS फेलोशिप के बारे में अगर लिख रहे हो आप, तो यू नीड टू राइट व्हाट इज JSPS, व्हाई इट इज गिवन, मतलब the brief history and the importance of that. In case of SRFP, you need to write what is the impact of SRFP, why it is given, like according to you, like very briefly 2-3 lines. That is also very important. Like people sometimes don't give this, but what I feel this is very important, because you need to specifically tell why you need this, not that, okay. And then like in everything you have to like give a conclusion. It's not like a very big conclusion full of quotes and all, but you need to like mention, you need to wrap up your things, whatever you have like told in this 2 page, okay. So it's a brief conclusion, and you can also say. So this is the basic structure: introduction, background, reason of opting, career goals, specific reasons for that thing, university or scholarship or whatever, and then conclusion, okay. So let me come to introduction. What is the introduction for a SOP? Like in a general structure, you need to give an introduction to your field, okay, but in a very general or broad manner. Like not like मान लो कि आपको फिजिकल में करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में you have to, you want to write something, like you want to do something, but it is like और फिजिकल केमिस्ट्री में आप शायद मान लो कि मटेरियल रिलेटेड कुछ मटेरियल रिलेटेड कुछ फिजिकल, और पेरोक्साइड रिलेटेड कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक काम करो. यू डोंट नीड टू गो टू दैट डीप, दैट स्पेसिफिसिटी, बट यू हैव टू गिव सम इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री और like physical chemistry rather say. So that's what a broad introduction in a very short manner, like
Some people try to cover with a like start with a quote. That is also a good, but it is not like it is mandatory. It's your choice. It's your SOP, so it's your choice. It's your thing. So you can do it by your own way. But it is like a normal thing. I want to say that is you have to give a introduction to your field. Okay. Then motivation for that broad field, why you have chosen physical chemistry, not the spectroscopy. That is like people choose spectroscopy after BSc. Okay, so that your SOP cannot start with that. It is like why you have chosen chemistry. Like in case of I'm just giving you an example. You love color from childhood, so and you get it like this color, the reason behind color, it is a chemistry, like some molecules are actually, so why it is color, then you can start with that, and that color is actually like pushed you into spectroscopic study. Okay, that is very possible thing. So that in like I am telling about that kind of motivation. ठीक है, आपको वो वाला मतलब एक broad introduction देके उसको choose करने के पीछे का जो रीजन वो आप दो। उसके बाद आप स्पेसिफिक फील्ड में आओ, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बोला है, मान लो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने कलर से चालू किया, तो फिर कलर्स और अंडरस्टैंडिंग से फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर कलर्स मैंने बाद में जाकर बीएससी में सीखा। तो then you are like coming to this third point, that small detailing about your specific field. Now you are coming that I loved then spectroscopy से आप कुछ स्पेसिफिक काम करना, तो you need to give this specific detail, but you have to like come not directly, you have to come like step wise. और एक चीज मैं यहाँ पे जो मैं बोलना भूल गया, that is a most important thing. Any SOP, like what is an example of good SOP? Then all these things are very much interconnected. What does it mean interconnected? तो मतलब लोग जब पढ़ रहे हैं ना उसको एंजॉय करना चाहिए। मतलब आपने इंट्रोडक्शन एक लिख दिया और फिर बैकग्राउंड में आ गया, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। इंट्रोडक्शन लिख दिया फिर एक मतलब आपका लिंक होना चाहिए इंट्रोडक्शन से बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड से इसका, मतलब एवरीथिंग इज लिंक। और इसीलिए मैंने बोला कि जो एसओपी का स्टाइल है, आप कभी भी इंट्रोडक्शन लिख के इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन एक पॉइंट या फिर इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, यू डोंट मतलब देयर विल बी ए वेरी इनविजिबल बाउंड्री, बट इट इज लाइक दैट बाउंड्री इज देयर बट nobody can observe it, it is like a feeling. तो that's what it should be very interconnected, मतलब आप एक चीज से एक चीज को डायरेक्ट जंप नहीं कर पाओ, मतलब करना चाहिए। तो ये कनेक्शन इसको रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे इसलिए मैंने बोला कि ऐसे कलर से आया, स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेल्स में आया, और फिर ये जो इंट्रोडक्शन करके आपको उसकी थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन प्रोस्पेक्ट्स, मतलब उससे क्या आपको ज़्यादा मिलने में एक मतलब जनरल ब्रॉड पिक्चर, मतलब व्हाट इज द बिग पिक्चर ऑफ योर थिंग। मतलब मान लो कि आप ग्रीन केमिस्ट्री की कुछ एक स्मॉल पार्ट में कर रहे हो, तो ग्रीन केमिस्ट्री व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ग्रीन केमिस्ट्री दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट कि इट इज एनवायरमेंटली बिनाइन, इट कैन like it can deal with very strong problem of human mankind. So that is like that this prospect, okay। क्योंकि आपके जो रीजन वाई और हाउ आप लिखने वाले हो वहाँ पे तो आप और भी डिटेल में बात करोगे, लेकिन द इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक दिस कि लोग आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के ही बाकी चीज पढ़ने लगे। तो यू नीड टू गिव दैट काइंड ऑफ लाइक दिस शुड बी वेरी वेरी लाइक प्रॉपरली रिटन, ठीक है। देन I'm coming to this background part. So introduction is done, then background part. So you have to write your journey from school to college. Then if you have any special exposure, like any special exposure means you have a like 7-day क्या बोलूँ मैं, मतलब कुछ एक हुआ था आपके पास, मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस हुआ था, आप उस वो लिख सकते हो। It can be academic, it can be industrial, any experience like you have before, like in case of I'm telling university, like you are applying for an university, you are trying to get admission in a university, so you have to write, or you should write that your research experience you have gathered before. So experience you need to give. Any special examination, normally national or international level, like you have given KVPY, you have given some national level or international level Olympiads, you need to mention, because these are your striking point, like you are like people can discriminate you from others by these things. And I have written extracurricular
और देन एक्सक्लेमेटरी एंड लाइक क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ध्यान मतलब कि ये देना ज़रूरी है एसओपी में, ये नहीं। तो मेरे हिसाब से तो आपको देना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आप एक पूरा एकेडमिक लिख रहे हो तो नॉर्मली लोग नहीं देते, पर आप दे भी सकते हो, मतलब इट्स योर चॉइस अगेन। पर ये इट्स लाइक माई चॉइस इज आई शुड नॉट, आई डोंट प्रेफर टू गिव इट, बिकॉज लाइक क्योंकि एक फ्लो का डिस्टर्ब होता है कि मैं यहाँ पे फील्ड में आ गया, फिर एक जर्नी में आया हूँ, फिर मैं जा मतलब फिर से मुझे उस फील्ड में जाना है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर में शायद मैं पेंट करता हूँ, तो उससे मतलब सब कुछ सीखना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन like I feel कि the connection will be lost. The connection or the flow of writing can be somehow obstacle. That's what. That's why I don't prefer. But if you write well, if you want to, like, if you have the potential to write it and incorporate this thing, then you can always write. That is not a problem. Okay. So then coming to the main important point, that is reason of opting. Why and how. यहाँ पे जैसे होता है ना, देखो जैसे मैंने बोला कि इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस को मतलब ये सारी चीज़ एक मतलब ये ऐसे नहीं कि पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, पहले इसको इसके बाद मतलब दिस इज नॉट द ऑर्डर, बट दिस आर द थिंग्स यू नीड टू कवर। तो यहाँ ऐसे जैसे शुरू करते हैं, मान लो कि मैं समर के लिए कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं बीएससी में जब प्रैक्टिकल होता था तो प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिकल करने के टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा, and then I want to know about these things more, or I want to do some I have read some experiment but I have not performed, so I want to do that thing। तो आप जो वो वाले एक्सपीरियंस से आप डायरेक्टली एक वाई पे आ सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आ सकते हो। या तो आप अगर मान लो कि यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, तो फिर आप बोल सकते हो कि मैंने एमएससी के टाइम पे ये प्रोजेक्ट किया, इसके टाइम पे ये बीएससी के टाइम पे ये किया, घर पे मैंने ये वाले मॉड्यूलेशन सीखा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मैंने किया, न्यूमेरिकल एनालिसिस किया। तो देन आई फील आई गॉट लाइक आई हैव इन्वेस्ट लाइक क्या बोलूँ मैं, आई हैव इन्वेस्टेड माई इंटरेस्ट इन दैट, एंड आई फील कि PhD और लाइक दिस समर प्रोग्राम, दिस रिसर्च एक्सपीरियंस कैन गिव मी द लाइक द अपॉर्चुनिटी टू लाइक क्या बोलूँ मैं, एक्सपीरियंस मोर। तो ऐसे आप आ सकते हो। वाई वाला जो टर्म है इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको एक ये वाला जो चीज़ बहुत ध्यान से लिखना है, इसके लिए अच्छे से टाइम दो, मतलब 2 दिन 3 दिन से मतलब देखो लिखना चाहिए, पहले एक बार लिख लिया, फिर आप उसको बैठ के एडिट करो दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन एडिट करो। मतलब अभी तो अगर SRF की मान लो कि मैं बोल रहा हूँ जो SRF की जो भी बच्चा SRF के लिए अप्लाई करे वो SOP लिखने वाला है, तो SRF वाले के लिए तो अभी नवंबर तक है, नवंबर एंड तक है, नवंबर 30 तक शायद डेट है, तो अभी तो बहुत टाइम है। तो आप इसके लिए 3 दिन दो, है ना, ये वाले मतलब इसके लिए मतलब व्हाई एंड हाउ के लिए। तो पहले अब व्हाई हो गया, अब हाउ मतलब मैं अगर आपके पास मतलब मैंने यहाँ पे कैसे होता है कि व्हाट यू हैव डन, what you want to do, and then how your specific university, specific guide, specific program can help you through this। तो मान लो मैंने एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, मैंने ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने बेसिक लेवल ऑफ सिंथेसिस किया, ठीक है, बेसिक सिंथेसिस मुझे पता है, नॉर्मल जो डाइडिल सॉल्डर मतलब जो भी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का सिंथेसिस मैंने MSc के टाइम पे किया, दिस इज माई डन। मैं वांट टू डू एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ठीक है, मुझे एसिमेट्रिक सिंथेसिस करना है। तो हाउ, क्योंकि मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसके एसिमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर वो काम करता है, तो दैट गाय कैन हेल्प मी, बिकॉज मुझे ये प्रायर नॉलेज है, मतलब बेसिक नॉलेज है, मुझे ये करना है, एंड दैट गाय कैन हेल्प मी थ्रू दिस, है ना। तो दिस थिंग मतलब कोई भी चीज़ आपको कुछ हेल्प होना चाहिए, उसको कुछ हेल्प होना चाहिए, इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन, साइंस इज ऑलवेज लाइक दैट। तो ये चीज़ आपको, ये हाउ वाले जो पार्ट में बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो दैट इज़ व्हाट, मतलब मान लो कि मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैंने फ्लोरोसेंस एब्जॉर्प्शन सीख लिया, और मुझे क्या करना है, सिंगल मॉलिक्यूलर लेवल करना है, मैं जो जिसके पास जा रहा हूँ वो सिंगल मॉलिक्यूलर लेवल, उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, या तो मैं सिंगल मॉलिक्यूलर नहीं, मैं बायो प्रोसेसिंग मतलब बायो प्रोसेस कैसे हो सकते हैं उसका बायोमॉलिक्यूलर डिनामिक्स देखना चाहता हूँ,
जो मैं ये बस नॉर्मल फ्लोरेसेंस एब्जॉर्प्शन से नहीं हो पाया, तो ये चाहिए, दिस बेसिक नॉलेज आई हैव, बट आई वांट टू नो सम सिंगल मॉलिकुलर लेवल हो या तो मॉलिकुलर लेवल डिनामिक्स, एंड दैट गाय कैन हेल्प मी थ्रू दिस। एंड मेरा जो ये दो चीज़ जो कि एक अच्छा काम हो सकता है, दैट ऐसे वाला लिखना चाहिए। जैसे बीएससी के लिए मैं एसआरएफ के लिए जब बोलूँ, तो मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो भी मेरा प्रैक्टिकल था मैंने बहुत अच्छे से किया, और मैंने ऐसे ऑनलाइन कुछ नया कोर्सेज लिया था, ऐसे बोल सकते हो, सबके लिए नहीं, जैसे जब आप किया वैसे ही करना चाहिए तो कर सकते हो। तो फिर उस जो एक्सपीरियंस आपने गैदर किया उसको आप अपना जो समर प्रोजेक्ट है उसमें भी कुछ गैदर करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस। और आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, मैंने थ्योरी पढ़ा है, तो ये थ्योरी में हेल्प करेगा मुझे ये सारे, और आपका जो आपसे जो एक्सपीरियंस और सीखने का मौका मिलेगा वो आई कैन मतलब गिव फॉर माई, आई कैन लाइक एक्योर फॉर माई पीएचडी और फर्दर रिसर्च कैरियर, है ना। तो वैसे होता है कि ये एसआरएफपी के लिए मैंने स्पेसिफिकली बोला। तो दिस थिंग्स आर लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आपने हाउ व्हेन बोल दिया, अब आपका जो करियर गोल है, आप क्या करना चाहते हो, एक साइंटिस्ट होना चाहते हो, और आपको एक ये वाला चीज़ स्पेसिफिक फील्ड में आपको ये करना है। ये बहुत सिंपल, मतलब बहुत छोटा सा एक लाइन या दो लाइन अगर लिख सकते हो, फिर ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका एसओपी डन। अब आपको जब करना है, जिसके लिए कर रहे हो, मान लो कि आप स्पेसिफिक रीज़न फॉर द थिंग, मतलब आपने यूनिवर्सिटी के लिए किया, आप स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हो, आप कुछ समर प्रोग्राम के लिए कर रहे हो, उसकी बारे में 2 लाइन लिखना चाहिए, ठीक है, उसकी बारे में 2 लाइन लिखना चाहिए। जैसे मैं मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ एक JSPS, जैसे मैंने पहले ही बताया था, वैसे ही कुछ मेरी पूरी फेलोशिप के लिए कुछ कर रहे हो, तो वाई मेरा पूरी फेलोशिप स्टार्टेड, इन व्हिच ईयर स्टार्टेड, लाइक दैट 2-3 लाइन, एंड हाउ इट विल हेल्प यू, वाई it is like a background research of that specific thing, and then how it will help you। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कभी भी अगर आप कोई एकेडमिक चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या कुछ एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब कभी भी मॉनिटरी जो हेल्प होता है ना, मॉनिटरी हेल्प या तो मतलब इकोनॉमिकली कुछ असिस्टेंस जो मिलता है, अब उसके बारे में बात नहीं करना अच्छा रहता है। मतलब आप मत लिखो मत कि मेरा ऐसे हालत ख़राब है तो मैं ये करना चाहता हूँ, समर प्रोजेक्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि समर प्रोजेक्ट में मुझे महीने में 20,000 मिलेगा, पीएचडी में इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि पीएचडी में मुझे साल का 12 लाख मिलता है। दैट इज़ नॉट द रीज़न यू चूज फॉर, दैट इज़ अ वेरी कॉमन सेंस ऑल्सो। तो दिस इज़ लाइक suggested to avoid, I can suggest you to avoid the thing, you should not write about monetary help. But if you are going for a specific scholarship, like there are 2-3 scholarship and you are opting for a specific scholarship, then you think like कि इसका ज़्यादा मतलब मॉनेटरी हेल्प है तो मैं इसलिए जा रहा हूँ, देन ऑल्सो यू कैन ट्राई टू अवॉइड दैट बाई राइटिंग लाइक कि ये जो ये बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप है और इट कैन पुश मी लाइक इफ आई गॉट दिस इट कैन मोटिवेट मी टू लाइक डू मोर हार्ड वर्क लाइक दैट। सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली अभी मॉनेटरी की चीज़ें नहीं लिखना ही अच्छा होता है। तो स्पेसिफिक रीज़न हो गया, उसके बाद क्या है कंक्लूजन में बस सम अप कर दो कि ऐसे ऐसे जो भी बोला, आप अगर मुझे ऐसे ले सकते हो, आपका जो भी मैंने काम देखा, आप अगर आपसे सीखना बहुत ही मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा, ये लिख सकते हो। आप कैसे मतलब और कुछ ये वाले स्कॉलरशिप मिलने से मुझे ऐसे पोस्ट मिलेगा, तो ये दो जो चीज़ है, ये दो अलग पॉइंट मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल है, लेकिन इसका जो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, दोनों को एक ही साथ में लिखना पड़ेगा। मतलब 3 लाइन की जगह अब 3 लाइन में भी पूरा ख़त्म कर दो, ऐसे टाइप का होगा। तो हो गया जैसे बोलना था, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, देन रीजन, देन कैरियर गोल्स, स्पेसिफिक रीजन एंड कंक्लूजन। तो मैं यहाँ पे बस 1-2 एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मैं बोला था इंट्रोडक्शन, देखो ये वाले इसमें क्या लगे, द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड साइंस इज टू मेक एन एफर्ट टुवर्ड्स making the world a better place to live. Industrialization is a primary tool in the process. However, it comes at the cost of nature. Development is necessary, but not at the cost of survival, and that is where we need the intervention of safer science, popularly called green chemistry. तो इस बंदे का क्या था, ग्रीन केमिस्ट्री में काम करना था कुछ, तो इसने ऐसे इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है ना, बहुत जनरल, कुछ नहीं बोला। अब धीरे धीरे जा रहा है, among the 12 principles of green chemistry developed by something,
कॉन्सेप्ट इज सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। अब देखो ग्रीन केमिस्ट्री बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, इसको क्या करना है, बस सॉल्वेंट के बारे में करना है। लेकिन इसने इंट्रोडक्शन क्या दिया, इसने फिर भी केमिस्ट्री नहीं किया, इसने और स्पेसिफिकली ग्रीन केमिस्ट्री में, ये भी एक प्रोसेस है। मतलब अब अगर 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो पांच तरीके का होगा। तो ये डायरेक्टली ग्रीन केमिस्ट्री में चला गया। उसके बाद क्योंकि ये ग्रीन केमिस्ट्री के भी स्पेसिफिक कुछ पार्ट में काम कर रहा है, तो इसने ग्रीन केमिस्ट्री का ही इंट्रोडक्शन से चालू किया। आप मान लो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वो केमिस्ट्री का बहुत बेसिक की चीज़ है, तो फिर आप केमिस्ट्री में स्टार्ट करके जा सकते हो। इट्स योर चॉइस ऑलवेज। मैं जो बोलना चाहता हूँ यही है। तो आप बोला कि एनवायरमेंटली सेफर सॉल्वेंट हैज ऑलवेज बीन द हार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड वाटर इज द ग्रीन सॉल्वेंट ऑफ चॉइस। एंड वो वाटर के बदले में, वाटर का कुछ दिक्कत है, इसका कुछ नहीं है, तो फिर वो वाटर के बदले में वो कुछ करना चाहते हैं, दैट इज ऑल। तो इतना ही इसमें दिखाना था, ठीक है। एक स्टाइल है। और देखो ये जैसे मैं कोड टाइप का चीज़ है, जो ये लिखा क्या, एकदम बहुत बेसिक में चला गया। क्या लिखा, एजुकेशन। द एसेंस ऑफ एजुकेशन इज नॉट द डेस्टिनेशन बट द जर्नी दैट वन अंडरटेक्स इन इट्स परस्यूट। One can never sit back in this journey. It starts from the birth and goes till our death. Moreover, higher education, in my opinion, is an investment that can only have reached dividends for an individual. ये जो SOP में यहाँ पे लिखा ना, ये जो बंदा है वो, उसको कैम्ब्रिज मिला था, ठीक है। ये कैम्ब्रिज वाला SOP, मतलब कैम्ब्रिज के लिए जो SOP उसने बनाया था, ये उसका एक स्क्रीनशॉट है। तो देखो इसका स्टाइल क्या है, मतलब इसने एकदम बेसिक जगह से स्टार्ट किया, तो आप कैसे भी कर सकते हो। एंड देन इसने एकेडमिक बैकग्राउंड में भी बहुत सिंपल तरीके से लेकिन बहुत अच्छे से लिखा है। लास्ट 3 years ऑफ माई फॉर्मल एजुकेशन इन सेंट स्टीफन कॉलेज, वो कॉलेज दिस बिलीफ वॉज फर्दर स्ट्रेंथेंड एंड देन हंगर। देखो ये कनेक्शन, ये जो बात बोला यहाँ पे कनेक्शन रख दिया, दिस बिलीफ वॉज फर्दर स्ट्रेंथेंड। तो ये जो वाला चीज़ है ना, आपको ये जो कनेक्शन ये रखना है। शायद ये वीडियो जब आप देख रहे हो तब आपको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मेरा जो मतलब आपके लिए जो सजेशन ये है, आप गूगल करो, गूगल में जाके आपको बहुत सारा स्टैंडर्ड SOP मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का SOP और केमिस्ट्री फिजिक्स का ही देखो, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत सारा रिलेटेड है। मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स का ही देखो, मैथ का थोड़ा सा नहीं देखना अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स या तो कुछ ऐसे वाला SOP देखो और पढ़ो। मतलब अभी पहले 2-3 दिन तो जितना भी SOP आपके आसपास मिल रहा है, मतलब आसपास, मतलब और कोई आपका सीनियर है कॉलेज का जिसको अच्छे से बाहर गया है, वैसे ये जो लोग, मतलब आपका जो पर्सनल कॉन्टैक्ट से जो भी मिलेगा ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपका जो भी सीनियर वगैरह है, आपका कोई जान पहचान वाला है जो जिसने बाहर गया है SOP लिख के, तो यू कैन आस्क देम फॉर देयर SOP। बट बार मैंने लास्ट दिन भी बोला था एक ही चीज़, SOP में आप कॉपी नहीं कर सकते हो, एक भी लाइन कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी अगर करो भी तो बहुत स्मार्टली होना चाहिए। मतलब आप यू जस्ट फील द एसेंस ऑफ दैट लाइन एंड यू कैन जस्ट रीराइट बाय योर ओन। यू कैन नॉट टेक द टोटल लाइन, ठीक है। तो आप ऐसे इसलिए 2-3-10 जितना भी SOP पढ़ो, बस पढ़ते रहो। और जैसे मैंने बोला, ये स्ट्रक्चर्स इसको याद करो, ठीक है। कैसे एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया, लेकिन कोई अगर इससे बहुत स्मार्ट बंदा होता है तो वो खुद कर सकता है। उसके लिए मैं इस वीडियो भी उतना काम नहीं, क्योंकि वो खुद लिखने वाला है। बस वो भी एक चीज़ देख के आइडिया होगा कि ऐसे लिखना है। क्योंकि जो BSc में MSc में जब SOP लिखने जाता है, मैंने भी MSc की लास्ट में ही SOP पहले बार ट्राई किया था, तब मेरे लिए भी बहुत दिक्कत था। तो फिर मैंने बहुत टाइम देगा, बहुत सारे बंदे से पूछा कि कैसे लिखना है, उनकी SOP मांगा, उन्होंने अपना SOP भेजा, फिर मैं पढ़ के कुछ लिखा, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब ये एक चीज़ है। फिर देखो यहाँ पे, मतलब मैं ये जो स्लाइड है मैं तो दे दूंगा, इसको स्लाइड को मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बस मुझे जैसे बोलना था कि ये देखो कनेक्शन देखो एक, और इंट्रोडक्शन कैसे लिख रहा है। ये जो लास्ट में एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या लिखा है कि why he or she choose the thing। क्या लिखा है, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई MSc प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ सम प्रोफेसर, लिखा है, ऐसे कुछ नहीं है, नाम देना अच्छा नहीं, इसलिए मैंने कर दिया इसको। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ सम प्रोफेसर एट IIT कानपुर लिखा था मैंने, बस मैं इसलिए इसको मिटा रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं है नाम किसी का देना, है ना। तो फिर यहाँ पे लिखा है ये काम करता था, ये काम करने के बाद इसने लिखा पूरा काम की जो भी एक्सपोजर मिला। फिर लिखा आई बिलीव माई एकेडमिक बैकग्राउंड एंड रिसर्च एक्सपीरियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री हैव इन्वोक्ड मी the potential to earn a doctoral degree through innovative research work. I am keen to work with different spectroscopic techniques to probe this and this, the ultimate variation in proteins, and then मतलब ऐसे लिखा
कि ये वाली चीज़ बोला, अपना एक्सपीरियंस जो भी है बोला, एक्सपीरियंस बोलने के बाद बोला कि देखो इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैं इतना ये सारे लोगों के साथ काम किया और ये एक्सपीरियंस गैदर किया, तो आई फील कि आई एम एबल टू डू इट, और आई फील माई सेल्फ कि आई विल बी अ गुड PhD कैंडिडेट। तो ऐसे वाला भी वाई ऐसे लिख सकता है। तो बाकी तो ये ऐसे ही करना, मतलब मेरे लिए ये बोलना था। तो एक दो तीन चीज़ मैं SOP के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहले बात तो मतलब मेक योर ओन इंट्रोडक्शन में कोई भी लाइन, मतलब आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं, लाइन एक भी कॉपी नहीं होना चाहिए। पूरा SOP में ही मैं लिख देता हूँ नो कॉपी मतलब नो कॉपी, कॉपीइंग इज़ वेरी मच प्रोहिबिटेड। फिर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिखो, इंट्रोडक्शन में टाइम दो, गिव 1-2 days टाइम टू दिस, देन अदर थिंग्स। एकेडमिक बैकग्राउंड में कुछ टाइम नहीं लगता, सब कुछ हो जाएगा। फिर जो आपका व्हाई एंड हाउ, इसके लिए भी आपको 2-3 दिन टाइम देना चाहिए। और एक चीज़ जैसे मैंने बोला, ये सारी चीज़ बाकी तो हो जाएगा। और गूगल करो कुछ भी करो, वहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड SOP बहुत सारा मिलता है। आप प्लीज़ लिंक मत मांगो कि ये देना अच्छा नहीं है, कि इट इज़ लाइक गिविंग यू द राइट टू कॉपी। आई कांट गिव यू द लिंक, यू शुड सर्च बाय योरसेल्फ एंड लाइक गेट इट डन। आप बहुत सारे SOP को लो, पढ़ो, एक भी लाइन कॉपी मत करो, पढ़ो बस 8, 10, 15 जितना आपके लिए फिजिबल है आप पढ़ लो, और फिर लिखना चालू कर दो अपने आप। ठीक है, ये जो वीडियो है मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत धीरे धीरे सब चीज़ें समझाए। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक बार देख लेना, फिर अब लिखो, हो जाएगा। और इस वाले जो वीडियो का जो स्लाइड्स है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, आप ले सकते हो। और कोई भी स्पेसिफिक SOP रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब देखो कैसे कौन सी लाइन ऐड करना है और लिख के मुझे भेजना कि चेक कर दो सर, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ना कि मैं करूँगा चेक, तो किसी का भी नहीं करूँगा मैं। पर मतलब कोई स्पेसिफिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो कि ऐसे इस जगह में मतलब कहाँ से हेल्प लूँ, या तो कैसे लिख सकता हूँ, लिखना ठीक है क्या नहीं, ये वाला लाइन, आई कैन हेल्प यू कैन कमेंट इट डाउन। ठीक है, तो आप कमेंट करो। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, और प्लीज़ बहुत सारे शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि मुझे पता है SOP लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस किया मेरे MSc के टाइम पे। SOP लिखने के लिए मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 30 days के आसपास लग गया था, कि उस सबसे कलेक्ट कर कोई नहीं था जो मुझे बता देगा कि ऐसे लिखो। तो ऐसे वाला चीज़ इसलिए मैंने वीडियो बना दिया कि बच्चों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, है ना। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, और अगर अच्छा लगा इस वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू।